شہربین کے سامعین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں: کشمیر میں سیاحت کو بحال کرنے کے لیے حکومت ٹور آپریٹروں کو بھرپور تعاون دے گی، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ مادر مہربان کی برسی پر کئی تقاریب کا اہتمام۔ اسپتالوں میں عملے کی کمی، مریض اور تیماردار پریشان۔ اور ریاسی میں غیر قانونی کانکنی دھڑلے سے جاری۔ شہربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج ملک بھر کے ٹور آپریٹرز کے ساتھ خصوصی بات چیت کی، جس کے دوران جموں کشمیر کی سیاحت کے منفرد تجربات کو اجاگر کیا گیا۔ انہوں نے ٹور آپریٹرز کو وادی میں سیاحت کے فروغ کے لیے اپنا بھرپور تعاون دینے کا یقین دلایا۔ اسی دوران آج پی ڈی ایف کے چیئرمین اور سابق وزیر حکیم محمد یاسین نے راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ حکیم محمد یاسین نے ضلع بڑگام میں دودھ پتھری، توس میدان اور یوسمرگ جیسے اہم سیاحتی مقامات پر لگی طویل بندش پر تشویش کا اظہار کیا، جس سے بقول ان کے مقامی معیشت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ ایل جی منوج سنہا نے انہیں یقین دلایا کہ ان سیاحتی مقامات پر لگی پابندیاں جلد ہٹا دی جائیں گی اور متعلقہ ہدایات پر نظر ثانی کی جا رہی ہے تاکہ بڑگام میں سیاحت اور متعلقہ شعبوں کو دوبارہ فعال بنایا جا سکے۔ سمن آج نیشنل کانفرنس نے مادر مہربان بیگم اکبر جہاں کی 25ویں برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت کئی سینئر لیڈران نے حضرت بل میں واقع ان کے مزار پر حاضری دی اور وہاں گلباری کی، جس کے بعد مزار پر فاتحہ خوانی کی گئی۔ ادھر وزیر تعلیم و صحت سکینہ یتو نے مادر مہربان بیگم اکبر جہاں کو ان کی 25ویں برسی کے موقع پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کی خود مختاری کے تئیں ان کا رول قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج بھی مادر مہربان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موصوفہ نے آج مادر مہربان کی 25ویں برسی پر ان کے مزار واقع نسیم باغ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور رکن اسمبلی تنویر صادق کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی 13 جولائی کی سرکاری تعطیل کی حیثیت سے بحالی کو عنقریب یقینی بنائے گی۔ تنویر صادق نے آج ان باتوں کا اظہار مادر مہربان کی 25ویں برسی کے موقع پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے دوران کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ڈی پی کی جب بی جے پی کے ساتھ حکومت تھی تو ان کا ایک بھی کابینی وزیر 13 جولائی کو شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نہیں جاتا تھا۔ ادھر کشتواڑ سے ملی اطلاع کے مطابق وہاں نیشنل کانفرنس کے ضلعی دفتر پر ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں مادر مہربان کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب کی صدارت سابق وزیر سجاد احمد کچلو نے کی۔ اس موقع پر مقررین نے بیگم اکبر جہاں کی سیاسی و سماجی خدمات کو یاد کیا اور کہا کہ وہ جموں کشمیر کی خواتین کے لیے مشعل راہ تھیں۔ ادھر سابق وزیر سید عبدالرشید نے بھی مادر مہربان بیگم اکبر جہاں کو ان کی 25ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی سماجی اور سیاسی خدمات کو شاندار الفاظ میں یاد کیا۔ دریاسنا آج مادر مہربان انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ سائنسز اینڈ ریسرچ کا سالانہ دن منایا گیا۔ اس موقع پر صحت و طبی تعلیم کے سیکریٹری ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ تقریب کے دوران نرسنگ کے شعبے میں گزشتہ برسوں کے دوران آئی انقلاب انگیز تبدیلیوں پر سیر حاصل بات ہوئی۔ علاوہ ازیں اسکم سورا سے وابستہ نرسنگ سٹاف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایک رپورٹ کے ساتھ اکرم الحسن۔ شہر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں آج مادر مہربان انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ سائنسز اینڈ ریسرچ کے اہتمام سے 11واں سالانہ کالج ڈے منایا گیا۔ اس ضمن میں سکمز آڈیٹوریم میں ایک پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں اس اہم ادارے کی اہمیت و افادیت بیان کرتے ہوئے اسے زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا تاکہ اس غیر معمولی ادارے سے زیادہ
استفادہ کیا جا سکے۔ تقریب میں صحت اور طبی تعلیم کے سیکریٹری ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ بطور مہمان خصوصی موجود تھے، جبکہ سکمز کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد اشرف گنائی مہمان زیر کار کے طور تشریف فرما تھے۔ ڈین میڈیکل فیکلٹی پروفیسر جی ایم گلزار، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر فاروق احمد جان اور ایڈیشنل ڈائریکٹر سکمز ظہور احمد میر بطور مہمانان خاص، جبکہ کالج کے پرنسپل پروفیسر محمد مقبول وانی اور تقریب کے آرگنائزنگ سیکریٹری ارجمند رسول بھی ایوان صدارت میں موجود تھے۔ آرگنائزنگ سیکریٹری ارجمند رسول نے خطبہ استقبالیہ میں مہمانان کا خیر مقدم کیا۔ نرسنگ کالج کی لیکچرر ظریفہ بانو نے اس سال سالانہ دن کی تھیم برجنگ دا ریسرچ پریکٹس گیپ ماسٹر ان سائنٹیفک رائٹنگ اسکل فار نرسنگ ایکسلنس پر تقریر کی۔ کالج کے پرنسپل اور آرگنائزنگ چیئرمین پروفیسر محمد مقبول وانی نے نرسنگ کالج کے کام کاج پر روشنی ڈالی اور کالج کی ضروریات کا بھی ذکر کیا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر فاروق احمد جان، ڈین میڈیکل فیکلٹی پروفیسر جی ایم گلزار اور ایڈیشنل ڈائریکٹر سکمز ظہور احمد میر نے بھی خطاب کیا۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ نے اپنے خطاب میں نرسنگ عملے کے کام کاج کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس شعبے سے تعلق رکھنے والے سٹاف اور طلاب کو بھی جدید سائنس کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنا ہے۔ انہوں نے سرکار کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ مادر مہربان انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ سائنس اینڈ ریسرچ وادی کا ایک ممتاز تعلیمی ادارہ ہے جس نے نرسنگ کی تعلیم کو فروغ دینے میں ایک غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ ڈائریکٹر سکمز پروفیسر محمد اشرف گنائی نے مادر مہربان کالج آف نرسنگ سائنس اینڈ ریسرچ کے کام کاج پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہاں نہ صرف جدید نرسنگ ٹیکنیک و سائنسی تحقیق کے اصولوں کے مطابق نرسنگ کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ تحقیق کو جدید تقاضوں کے مطابق ہر سو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ادارہ سالہ سال سے ہنرمند نرسوں کو طبی شعبے میں اپنی خدمات دینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس موقع پر مقررین نے سکمز کے نرسنگ اسٹاف کے رول اور اس کی خدمات کو سراہا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے طبی شعبے میں نرسنگ کی اہمیت و افادیت پر بات کی اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ سکمز میں نرسنگ اسٹاف روز اول سے ہی اطمینان بخش طریقے سے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ تاہم اس موقع پر نرسنگ شعبے کو مزید بہتر بنانے اور عملے کو مزید سہولیات سے لیس کرنے پر زور دیا۔ مادر مہربان کالج آف نرسنگ کا سالانہ دن، اکرم الحسن کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی کشمیر میں اگلے 2 دنوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، تاہم اس مدت میں کہیں کہیں ہلکی بارشیں بھی متوقع ہیں، جبکہ 14 سے 16 جولائی تک وادی میں بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کا امکان ہے اور کہیں کہیں تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔ محکمہ نے اپنے ایڈوائزری میں کہا ہے کہ اس دوران کچھ مقامات پر سیلابی ریلیں آنے، لینڈ سلائڈنگ یا چٹانیں کھسک آنے کے بھی خطرات ہیں۔ ادھر شری امرناتھ یاترا کے لیے 6000 سے زائد یاتریوں کا 10واں قافلہ سخت سیکیورٹی حصار کے بیچ آج صبح جموں سے وادی کشمیر کے لیے روانہ ہوا۔ سرکاری ذرائع کے بقول بھگوتی نگر بیس کیمپ سے آج صبح 6482 یاتریوں کا قافلہ 268 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں کشمیر کے لیے روانہ ہوا۔ حکام کے مطابق اب تک لگ بھگ 1.5 لاکھ یاتری پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 2 جولائی کو بھگوتی نگر بیس کیمپ سے یاتریوں کے پہلے قافلے کو جھنڈی دکھا کے روانہ کیا تھا۔ سمن جموں کشمیر میں قائم مختلف سرکاری اسپتالوں میں لگ بھگ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ مریضوں کا دباؤ بڑھتا جاتا ہے۔ البتہ یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ اسپتالوں میں طبی اور نیم طبی عملے کی افرادی قوت اور دیگر سہولیات بالخصوص تشخیصی سہولیات میں حسب ضرورت وسعت نہیں آ رہی ہے۔ واضح ہے کہ جموں کشمیر کے متعدد اسپتالوں میں ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کے ساتھ ساتھ نرسنگ سٹاف کی سینکڑوں اسامیاں خالی پڑی ہیں، جنہیں پور کرنے کے لیے سرکار کوئی ٹھوس قدم اٹھانے سے قاصر رہی ہے۔
गौरतलब है कि यूटी के तकरीबन सभी अस्पतालों में हर माह मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं, पर इनकी कमी पूरा करने के लिए कोई नई भर्ती अमल में नहीं लाई जा रही है। इस सूरत हाल के नतीजे में मरीजों को वो खिदमात मैसर नहीं हो पा रही हैं कि जिनके वो मुस्तहक हैं। एक रिपोर्ट के साथ बड़गाम से यूनुस पर्रे। जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतर तबी सहूलियात बहाल रखने के लिए अगरचे सरकार बड़े बड़े इकदाम कर रही है, ताम तबी मराकज में अमले की कमी की वजह से मरीजों को इलाज मुआवजे की खदमात हासिल करने में गोनो गो मसाइब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बड़गाम जिले के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की वजह से अस्पतालों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताम हुकूमत अवाम की इस परेशानी पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। वही जिले में अगरचे 533 गाँव जात से वाबस्ता 8 लाख से ज्यादा अफराद के लिए गेरा कनाल पर मुहित जिला का आगा से यूसुफ मेमोरियल अस्पताल कई डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की मुतअद्दिद असामियां खाली पड़ी है, जिसकी वजह से जिले के लोगों को इलाज मुआवजा की खातिर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक जिला अस्पताल में कुल मिलाकर 53 असामियां खाली पड़ी है। वही अस्पताल में रोजाना 1100 से ज्यादा बीमारों का इलाज मुआवजा किया जा रहा है। तमाम अस्पताल में कंसल्टेंट्स के अलावा नॉन गेजेटेड मुलाजिमीन की मुतअद्दिद असामियां अरसे दराज से खाली पड़ी हुई है, जिनमें सीनियर सुपरवाइजरी और हेड फार्मासिस्ट, जूनियर नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, थिएटर और एक्सरे टेक्नीशियन और एमटीएस की असामियां काबिल जिक्र है। महकमा पर सवाल निशान है कि अस्पताल में कोई भी फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है और पिछले 2 सालों से लगातार रिटायर होने के बाद एक भी फार्मासिस्ट को अस्पताल में तैनात नहीं किया गया, जबकि सीटी स्कैन की बिल्डिंग भी काम की सुस्त रफ्तारी की वजह से बीमारों को जबरदस्त मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं। वही दूसरी जानिब 106 में से 53 खाली जगह आसामी को पूरा करने की खातिर से इंतजामिया और सरकार ने कई बार यकीन दहानी भी कराई थी, ताम ये दावे शराब साबित होते जा रहे हैं और जिला अस्पताल में अमले की कमी दूर दूर से नजर आती है। इधर अस्पताल के मुलाजमीन के साथ साथ तीमारदारों के मुताबिक गाड़ियों के लिए पार्किंग सहूलियात न होने की वजह से भी शदीद दुश्वारियां पेश आ रही है और मरीजों का रश रहने से मकामी लोगों ने महकमा सेहत के आला हुकाम से अस्पताल में अमले की कमी और को दूर करने की अपील की ताकि लोगों के मुश्किलात कम हो सके। वही दूसरी जानब जिले के कई सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में अभी भी बुनियादी सहूलियात के फकदान से मरीज महरूम और तबी व नीम तबी अमले की वजह से बीमार और तीमारदार नाला है और इन अस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर तस्वीर के दूसरे पहलू की तरफ देखा जाए कि एक तरफ एलजी मनोज सिन्हा ने 18 सितंबर 2023 में नए अस्पताल की संग बुनियाद रखी थी, ताम इस पर काम सुस्त रफ्तारी की वजह से अभी तक 35% काम मुकम्मल हुआ है, जिस पर लोगों ने महकमा पर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उस वक्त के चीफ इंजीनियर ने एलजी की मौजूदगी में ऐलान करते हुए कहा था कि 2 साल के अंदर अंदर अस्पताल की इमारत मुकम्मल कराई जाएगी। ताम 125 बिस्तरों के साथ साथ एनएचएम साइड की तरफ से भी 24 करोड़ वागुजार होने से 100 बिस्तरों की मंजूरी मिलने का 1 साल मुकम्मल हुआ है, ताम उस पर भी सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि नए अस्पताल की काम पर मजीद सूरत लाई जाए और अस्पताल में 53 खाली असामी को जल्द अज जल्द पूरा कराया जाए ताकि मरीजों को ज्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। शहरबेन ने इस हवाले से जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट बड़गाम डॉक्टर एजाज अहमद खान से पूछा तो उन्होंने जवाबन कहा कि कमी की वजह से दुश्वारियां तो पेश आ रही है और नए अस्पताल की इमारत बनने के बाद ये कमी दूर हो जाएगी और अस्पताल में मरीजों के लिए सहूलियात में मजीद इजाफा करने की कोशिशें की जा रही है। बड़गाम से यूनुस परी की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। अनंतनाग से एस तारिक की इत्तला है कि पहलगाम के इलाके लारीपुरा में आज सुबह आग की एक वारदात में 4 रिहायशी मकाना तबाह हुए। बताया जाता है कि फायर ब्रिगेड, पुलिस, फौज और मकामी लोगों ने मुश्तरका तौर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम अभी तक आग की वजूहात का पता नहीं लगाया जा सका है। इत्तलात के मुताबिक इस वारदात में लाखों रुपए की इमलाक का जिया हुआ है। इधर त्राल से शबीर भट्ट की इत्तला है कि त्राल के नहर, खासीपुरा और दीगर मज़ाफ़ाती देहात में किसान सख्त परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चूंकि वहां धान के खेत पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो चुके हैं। मकामी आबादी के मुताबिक इरिगेशन महकमा हस्बे ज़रूरत पानी फराहम करने में नाकाम हो चुका है और यूं फसलें तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। मुतल्लिका काश्तकारों का कहना है कि अगर फौरी तौर पर पानी की फराहमी यकीनी ना बनाई गई तो उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। समय आज से ठीक 11 साल पहले इंतजामी ढांचे को बेहतर बनाने के मकसद से कई नई तहसीलों और नयाबतों का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन अभी तक इन 9 कायम शुदा इंतजामी यूनिटों में मुनासिब बुनियादी ढांचा फराहम नहीं हो पाया है। हद तो यह है कि इन नई तहसीलों में तहसील सतह के सरकारी दफातर भी कायम नहीं हो पाए हैं,
जबकि बाज़ेक में 2-1 कमरे किराए पर लेकर दफ्तर बराए नाम चलाए जा रहे हैं। इस तनाजुर में हम आज के प्रोग्राम में ज़िला रामबन की तहसील खड़ी माहूमंगित का जिक्र करेंगे। खड़ी माहूमंगित को तहसील बने 11 साल हुए हैं, अलबत्ता एक दहाई से ज़्यादा वक्त फ़कत इतना कारनामा करने में सर्फ हो पाया है कि BDO ऑफिस वहाँ कायम हो पाया है, लेकिन वो भी एक ऐसी जगह जहाँ आम लोगों की रसाई बहुत मुश्किल है। एक तहसील ऑफिस भी कायम किया गया है, अलबत्ता वो सरकारी गेस्ट हाउस में कायम है। एक रिपोर्ट के साथ बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। जिला रामबन में तहसील खड़ी माहूमंगित का कयाम सन 2014 में लाया गया है, लेकिन अब 11 साल बाद भी तहसील के नाम पर यहाँ सिर्फ चंद एक सरकारी महकमे ही काम कर रहे हैं और बेशतर सरकारी महकमों के कयाम के लिए अब तक किसी भी किस्म के सरकारी इकदाम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से तहसील का दर्जा पाने के बावजूद तहसील खड़ी माहूमंगित के दर्जनों देहात से ताल्लुक रखने वाले हजारों लोगों को अपने रोजमर्रा के मामलात निपटाने के लिए नाकाबिल बयान मुश्किलात और दुश्वार गुजार जिंदगी का सामना है। लोगों का कहना है कि अभी तक तहसील खड़ी में कोई सरकारी इमारत तामीर ही नहीं की गई है, जिसकी वजह से तहसील खड़ी का दफ्तर डाक बंगला से चल रहा है, जबकि इलाके में वाहिद सरकारी बिल्डिंग के नाम पर BDO दफ्तर है, जिसे पिछले ही साल तहसील हेडक्वार्टर से दूर एक ऐसी सुनसान जगह पर तामीर किया गया है जहां पहुंचने के लिए सड़क तो दूर की बात, डंग का रास्ता भी मौजूद नहीं है। इंतजामी यूनिटों में ही नयाबत मंगित के लिए किराए की एक इमारत पर पिछले करीब 7-8 सालों से लाखों रुपए का किराया अदा तो किया गया है, लेकिन अभी तक नायाबत मंगित में किसी नायब तहसीलदार के कदम पड़े ही नहीं है और नायब तहसीलदार मंगित तहसील हेडक्वार्टर खड़ी पर ही बराजमान रहते आए हैं। तहसील खड़ी में खोड़ा, कुंडा, लबलोठा, धनगाम, लटसीर, सराची, नादका, बाटीबाज, बुजला और आखरन के इलाके अभी तक सड़क राब्तों से जोड़े ही नहीं गए हैं और लोगों के लिए पहाड़ों और दुश्वार रास्तों का पैदल सफर जैसे मुकद्दर बन गया है। सब डिवीजन बानहाल से 20 से 35 किलोमीटर दूर वसी इलाके पर फैले तहसील खड़ी के सबसे बड़े तिबी इदारे PHC खड़ी में माहिर अमराज खवातीन, बच्चों के डॉक्टर समेत एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जांच के लिए दीगर जरूरी सहूलियात मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से दूर पहाड़ों से यहाँ लाए जाने वाले बेशतर मरीजों और दर्द ज़हन में मुब्तला खवातीन को बानहाल और अनंतनाग के अस्पतालों में मुंतकिल करने के बगैर कोई चारा नहीं रह जाता है। जिला रामबन के बाकी इलाकों की तरह सवालात और बाहरी हुकूमत की अदम अदायगियों के भंवर में फंसे जल जीवन मिशन के साफ पानी का हसूल खड़ी तहसील की दर्जनों बस्तियों के लिए अभी भी एक ख्वाब बना हुआ है और एक एक पंचायत में करोड़ों रुपए की लागत वाले जल जीवन मिशन के कामों से लोग नाला हैं। अगर इस बुनियाद वो 2014 मज तहसील खड़ी तहसील आमुत मगर वस तान सह तहसील बिल्कुल खाली तहसीलदार साहब बेहन BDO साहब बेहन बस 3 डिपार्टमेंट टोटल आन 2014 पे वस तान कूत टाइम गो एक तहसील वह डाक बंगल तथ मज तहसील वैन हालांकि जमीन तर फराहम तथ मज बनो सिर्फ ब्लाक बनो बिल्डिंग बनो ब्लाक बस तीज बना बाकी 36 डिपार्टमेंट में सिर्फ टोटल 3 डिपार्टमेंट इस वक्त खड़ी में काम कर रहे हैं। एजुकेशन के मामले से इस वक्त हमारे 25,000 बच्चे हैं इस जोन में, तकरीबन 30,000, मगर उस्ताद ना होने के बराबर हैं। उस्ताद ही नहीं कहीं स्कूल और जितने भी स्कूल हाई सेकेंडरी हमारी हो, महू हो, त्रगाम हो, कुमला हो, आहमा हो, मंजोस हो, तरगाम हो, जितना भी एरिया है जोन में टोटल 25-30,000 बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं और ना होने के बराबर स्टाफ है ही नहीं कहीं। तहसील खड़ी को यह इम्तियाज हासिल है कि यहाँ से सुमर तक हिंदुस्तानी रेलवे का सबसे लंबे रेलवे टनल समेत कई रेलवे टनलों और रेलवे स्टेशनों को तामीर किया गया है, लेकिन रेलवे तामीराती एजेंसी इरकान इंटरनेशनल और इसकी तामीराती कंपनियों ने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR के तहत यहाँ की तामीर और तरक्की में हिस्सा अदा करने के बजाय यहाँ के माहौल को ही नुकसान पहुँचाया है और तहसील हेडक्वार्टर खड़ी को नाचलान से जोड़ने वाली राब्ता सड़क के अलावा कई इलाकों के रास्तों और पीने के पानी के चश्मों और दीगर जखायर को ही तामीराती कंपनियों ने तबाह करके रख छोड़ा है और ये तामीराती एजेंसियां अब यहां से निकल भी गई हैं और मुबैना तौर पर
सरकारी हाकिमों और चंद मुकामी खरपंचों की छतर छाया में 2 दहाइयों तक मन मर्जी का मुजाहिरा करने वाली तामीराती कंपनियों की इन नाइंसाफियों की सजा आज भी तहसील खड़ी के हजारों आम लोगों को भुगतना पड़ रही है। बानियार से मोहम्मद अस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर पीटीपी के लीडर मंजूर अहमद वानी ने अपने एक बयान में कहा है कि आज खाग के अस्पताल में हफीजा नामी एक खातून को जायदुल मियाद इंजेक्शन लगाई गई, जिसके नतीजे में उसकी हालत ख़राब हुई और इस वक्त ये खातून जेवीसी अस्पताल में मौत हयात की कशमकश में है। मंजूर अहमद वानी ने वज़ीर सेहत से मुतालबा किया है कि इस मामले की तहकीकात कराई जाए और कसूरवारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। समय जम्मू कश्मीर के तुलो अर्ज से शिकायत आ रही है कि नदी नालों में की जा रही बेहंगम और गैर साइंसी कानकनी से इन आबी वसीलों के हैत तेजी से बिगड़ रही है, जिसके नतीजे में मुतल्लिका इलाका जात में पीने के पानी और सिंचाई की स्कीमें शिद्दत से मुतासिर हो रही हैं। गौरतलब है कि गैर कानूनी कानकनी की निस्बत से यूं तो रोजाना शिकायत मौसूल होती हैं, इसके बावजूद जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे की तरफ से मुश्किल से कोई दूररस तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। नतीजा ये कि गैर कानूनी कानकनी में मुलविस अनासिर को हौसला मिलता रहता है और यूं माहौलियाती शिराजे के साथ किया जाने वाला एक खिलवाड़ जारी है। राजौरी से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट। जिला राजौरी में बड़े पैमाने पर जारी गैर कानूनी और गैर साइंसी कानकनी के तरीकों से नदी नालों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जबकि महकमा जल शक्ति का बुनियादी ढांचा भी मुतासर हुआ है। इतलात के मुताबिक महकमा कानकनी की तरफ से नाफज करदा मंजूर शुदा साइंसी मनसूबा जिला में गैर मुनज़्ज़म है और ज्यादातर इलाकों में बड़े पैमाने पर गैर साइंसी और गैर कानूनी कानकनी बिला रोक टोक जारी है। हुकाम को जिला के मुख्तलिफ नदी नालों में गैर पेशे वाराना और गैर मुनज़्ज़म कानकनी के बारे में बहुत सी शिकायत मसूल हुई हैं, जो मंजूर शुदा मनसूबे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। ज़राए ने शहरबीन को बताया कि गैर कानूनी कानकनी के तरीकों की वजह से अहम अवामी असासा जैसे हवाती द्वारें, कौएं, सड़कें, पुल और आपाशी नहरें बराह रास्त मुतासर हुई हैं। गमीर ब्राह्मणा से लेकर सुंदरबनी तक और खानली पुल से कालाकोट तक दरहाल नाला हो या थना मंडी नाला हो या बुदल नाला, जिला के तकरीबन सभी नदी नालों पर कानकनी का अमल बिला रोक टोक जारी है। एक और जराए ने शहरबीन को बताया कि अफरादी कुव्वत और मशीनरी बशमूल भारी मशीनरी जैसे चैन वाली मशीनें और जेसीबी दोनों को नदी नालों के किनारे से कानकनी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ जगहों पर नदी में 4 फुट से ज्यादा गहरे गड्ढे हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में संगीन मसाइल और डूबने के वाकयात पेश आ सकते हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि दरिया के किनारे अतराफ की सड़क से 50 मीटर पुलों और आबी ज़हायर खोदे गए कौए के ऊपर और नीचे की तरफ 20 मीटर कानकनी करना ममनू है। वाटर वर्क्स और हेड वर्क्स सैलाब के बांध से 10 मीटर दूर, लेकिन इन तमाम असूलों को जिला में दाव पर लगा दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जेसीबी वाले दरिया की तह में गहरे गड्ढे कर देते हैं, जिसकी वजह से बोट लोग दरिया पार करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। खदाई के नतीजे में अदम तवाज़ुन पैदा होता है, लेकिन राजौरी इंतजामिया इस संगीन खिलाफवर्जी की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। ज्यादातर रात के वक्त में गैर कानूनी कानकनी होती है। नजदीक के लोगों का कहना है रात भर कानकनी की वजह से हमारे लिए रात को आराम करना दुश्वार हो जाता है। जिला राजौरी में नदी नालों की तबाही की जा रही है। मुतलका महकमा के अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मरकजी तहकीकात एजेंसी को इस मामले की तहकीकात के लिए कहना चाहिए। दरहाली गाँव के मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया। राजौरी से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर जीएम शाहीन ने आज जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू से उनके दफ्तर में मुलाकात की और इस मौके पर उनकी दानिस्त में कई मामलात लाए, जिनमें बतौर खास डेली वेजरों की मुस्तकली का मामला शामिल था। और प्रोग्राम के आखिर में खबर की शुहदाए करबला की याद में इमाम बारगाह बारजी हारवन में एक अजीम शान तकरीब का एहतमाम किया गया। शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस के नाम से मंसूब इस तकरीब का एहतमाम अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर की सरपरस्ती में JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से इंदर कल्चरल फोरम सुंबल सोनावारी और एक और तंजीम ने किया था।
तकरीब की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा ने की, जबकि निसार नसीम, इमदाद साकी, मोहम्मद अमीन भट्ट और खुर्शीद काजमी तकरीब में मेहमानान ज़ीविकार की हैसियत से शरीक हुए। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ और इसके फ़ौरन बाद नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। तकरीब में वादी के कई मुमताज़ अदीब, कलमकार, दानिश्वर और शायर शरीक हुए, जिन्होंने शुहदाए करबला को अपने शानदार अल्फाज में खिराज पेश किया। तकरीब में गुलफाम बारजी ने मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम उन्वान से मकाला पेश किया। इसके अलावा तकरीब में एक हुसैनी मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें कई मुमताज़ शायरों ने इमाम अली मकाम और उनके रुफाका को शानदार खिराज पेश किया। तकरीब की निज़ामत ऑल इंडिया रेडियो के सीनियर अनाउंसर रशीद निज़ामी ने की। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।